Hi guys, welcome back to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today we're going to discuss about a very controversial law that has actually caused controversy, particularly in the last decade. Okay, people really got to talk about it because there were a lot of people who were charged under this particular offense. Yes, I'm talking about the law of sedition, and that is something that we're going to discuss today as to what is the controversy, why is it so much in controversy all the time. But before understanding and appreciating the controversy and basically getting a knack of it, it's very important to understand a little bit of background story about it. So this story begins in 1857. We know that in 1857 a very important and I would say a historic event happened in the Indian history, wherein the first war of independence happened. Okay, so it was the first, I would say, a proper managed or a structured war against the British government that happened in 1857, right? After that, what happened? In 1860, the British Parliament came up, or the British government, we could say, they came up with the Indian Penal Code 1860, जिसको हम IPC कहते हैं. So IPC में basically क्या है? It had all the offences की जो भी criminal offences होते हैं, वो सब IPC में दे रखे होते हैं. However, sedition was not a part of the original IPC that came in 1860. By the way of an amendment in the year 1870, sedition was included under section 124A of the Indian Penal Code. ठीक है, तो उसके अंदर sedition आया in the category और in the chapter called offences against the state. यहाँ पे offences against the state का मतलब था state यहाँ पर थी दी British government. So British government इस particular law को क्यों लाई थी? Because they wanted to curb any voice that is raised against the British government. ठीक है, so उसका काफी सारे cases है that is something that we're going to discuss. पहले समझते हैं कि सेडिशन लॉ बोलता क्या है. व्हाट डज सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड सेज? इट सेज दैट हुएवर बाय वर्ड्स either spoken or written or by signs or by visible representations attempts to bring or brings hatred or contempt against the government that has been established by law can be imprisoned for life, or it could be imprisoned for 3 years or more, right? Now this particular provision says कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एनीबडी हु गोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ इंसाइटिंग मासेस, ठीक है, जो लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट उकसा सके, ऐसी कोई स्पीच दे दे, ऐसे कोई साइंस दे दे, या फिर ऐसा कोई अटेम्प्ट भी कर ले, उसको सेडिशन के अंदर चार्ज कर दिया जाएगा, है ना. प्रिटी मच अ कॉलोनियल लॉ. ब्रिटिशर्स को हम पे राज करना था, इसलिए वो ऐसा लॉ लाए. In 1991, the first case under this particular act, the first conviction happened in this act was the Bangabasi newspaper case. Now they published certain article which was according to the British government against the law. So they convicted the newspaper company, and I would say the owners of the newspaper company against in this particular act, under this particular act. This was the first ever case. After that, Bal Gangadhar Tilak and there were certain other freedom fighters who went to jail under this particular act. Now, a major understanding was that after our independence, after 1947 and after our constitution came in 1950, such a law would be done away with, because we all had the freedom of speech and expression under Article 19 of the Indian Constitution. तो ऐसी एक्ट को हटा दिया जाएगा, इसका कुछ काम नहीं है. Okay, now the constitutionality of this particular law came up against the Supreme Court in 1962. This case is called Kedarnath Singh versus State of Bihar. It was a decision of 5 judges of the Supreme Court, a constitutional bench of the Supreme Court, जहाँ पर Supreme Court ने clearly कहा that this is a reasonable restriction on the freedom of speech and expression and there is nothing ultra virus about it. उन्होंने basically कहा कि this is nothing beyond the constitution, this is nothing unconstitutional. तो ये लॉ बिल्कुल सही है, इट्स अ रीजनेबल कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एंड अ फंडामेंटल राइट. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दिया, 5 जज बचे थे सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, केसेस के फैक्ट कुछ इस तरह थे कि केदारनाथ सिंह ने जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और जो CID जिसको हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, उनके अगेंस्ट काफी वर्ड यूज किए थे लाइक डॉग्स, गुंडाज एंड सो ऑन. ठीक है, तो उनको कन्विक्ट किया गया था, इसके लिए चार्ज किया गया था, फिर वो कन्विक्ट नहीं हुए थे, तो उन्होंने केस फाइल किया था. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. 1962 में ये केस डिसाइड हो गया था. उसके बाद में कई बार सेडिशन लॉ को इंडिया में लगाया गया अलग अलग पर्पसेस के लिए, पर्टिकुलरली इन द रीसेंट टाइम्स. इफ यू लुक द ट्रेंड फ्रॉम 2016 टू 2020, हर साल इंडिया में सेडिशन के चार्ज जितने भी गवर्नमेंट ने लगाए हैं वो इंक्रीज होते रहे हैं.
And that is very alarming and I would say kind of disappointing in a country like India, which is a democratic country and guarantees fundamental rights to all its citizens. So guys, I think a lot of you would know that I've started teaching on Unacademy also. So मैंने यहाँ पर description box में सारे जो important lectures हैं उनको अटैच कर रखा है, उनके लिंक्स अटैच कर रखे हैं इंक्लूडिंग सेडिशन. आप डिटेल में मेरे सेशंस देख सकते हैं वहाँ पे, देयर फ्री. आप देख सकते हो. अगर आपको लगता है कि माई स्टाइल ऑफ टीचिंग इज समथिंग दैट सूट्स यू, you can enroll for the new batch called Law for All 2.0, which is for the batch of 2022. It starts on 21st July. You're most welcome to enroll. You will get a 10% off using my code Malpani for this particular batch. Coming back to the law, केदारनाथ सिंह 1962 में डिसाइड हो गया. फिर मैंने आपको बताया कि कई लोग इसमें कॉन्विक्ट होते रहे, लेकिन लास्ट 5 साल का ट्रेंड बहुत ज्यादा अलार्मिंग है. ठीक है. 2015 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम आईटी एक्ट के 66A जो प्रोविजन था उसको हटाने के लिए जानते हैं. वहां पर एक बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन किया गया था बिटवीन मियर एडवोकेसी डिस्कशन एंड बिटवीन इंसाइटमेंट. उन्होंने कहा कि आप जो फंडामेंटल राइट का ये ब्रीच बोलते हो ना, फंडामेंटल राइट का ब्रीच आप नहीं कर सकते हो किसी का भी अनलेस देयर आर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, अनलेस कि देश की सिक्योरिटी पे बात बनाई है, आप उनका ब्रीच नहीं बोल सकते हो. राइट. ओनली इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस दे कैन बी कर्ब्ड. राइट. और डिस्कशन या एडवोकेसी को यू कैन नॉट कॉल इंसाइटमेंट. एवरीथिंग डज नॉट बिकम एन इंसाइटमेंट. राइट. सो ये श्रेया सिंगल में काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का. उसके बाद में 2017 में वी नो सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, he filed a PIL in the Supreme Court asking the court to please revisit this law, because हम अभी तक 1962 का जो केदारनाथ सिंह वाला जजमेंट है, जो आउटडेटेड जजमेंट है, उसको फॉलो कर रहे हैं. एंड द सिचुएशन ऑफ द कंट्री हैज चेंज्ड, द राइट्स दैट वी एंजॉय हैज चेंज्ड ओवर द लास्ट 50-60 years. बट द सुप्रीम कोर्ट सेड कि यहां पर इस लॉ में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और इसको नहीं हटाया जा सकता है. इट्स अ मियर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. और उनके PIL को वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया. इस PIL में प्रशांत भूषण ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी. उन्होंने कहा था कि 2009 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, बेसिकली जो यूके की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अपनी बुक से, उन्होंने भी अपनी लॉ से इस लॉ को हटा दिया है. दे हैव आल्सो रिमूव्ड इट इन 2009. बेसिकली जो लोग हमारी कंट्री में इस लॉ को लाए थे इन 1870, उन लोगों ने अपनी कंट्री से हटा दिया है. सो व्हाई डू वी हैव दिस लॉ? आर वी नॉट अ कंट्री व्हिच गारंटीज ऑल इट्स सिटीजंस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड अदर फंडामेंटल राइट्स? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था मिस्टर प्रशांत भूषण का इस केस में. उसके बाद में अभी बहुत रिसेंटली हमने देखा एक टूल किट कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इंडिया में, वेर इन अ 22-year-old स्टूडेंट फ्रॉम बैंगलोर कॉल्ड दिशा रवि, शी वॉज चार्ज ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेडिशन फॉर सर्क्यूलेटिंग अ टूल किट फॉर द फार्मर्स, जो 26 जनवरी 2021 को पार्लियामेंट हाउस के पास में इकट्ठा होने वाले थे, इंडिया गेट के पास में इकट्ठा होने वाले थे. शी सर्क्यूलेटेड अ टूल किट कि आप अपनी प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हो. फॉर दैट पर्पज she was actually charged of sedition. उसके अलावा वेरी रिसेंटली अभी एक लक्षद्वीप का इशू चल रहा है जिसपे मैंने अलग से वीडियो बनाया. इनफैक्ट मैंने दिशा रवि वाले उस पर भी अलग से वीडियो बनाया. आप करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं इस चैनल पर. तो अभी क्या हुआ, वेरी रिसेंटली लक्षद्वीप इज अ वेरी, आई वुड से, पीसफुल प्लेस, बट वहां पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में आजकल लक्षद्वीप आ गया. सो देयर इज दिस एक्ट्रेस ऑफ लक्षद्वीप एरिया कॉल्ड आयशा सुल्ताना. Aisha Sultana was on a Malayalam language news channel and she said that the cases of COVID-19 cases in Lakshadweep are rising because government has left some kind of a bioweapon there. गवर्नमेंट ने कोई बायो वेपन छोड़ दिया है वहां पे, इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं. एक्चुअली पहले क्या होता था कि व्हेन यू हैड टू गो टू लक्षद्वीप, दे फॉलोड द केरला मॉडल. अंडर द केरला मॉडल यू हैड टू क्वारंटाइन योरसेल्फ 7 days इन कोची एंड देन 7 days इन लक्षद्वीप. तो आपको 14 days का क्वारंटाइन करना पड़ता था और वहां पर बहुत ही कम केसेस थे कोविड-19 के. अभी वहां पे रैपिडली बढ़ने लग गए बिकॉज वहां पर एक नया चेंज आ गया, वेर इन इफ यू शो दैट यू हैव अ नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट, देन यू आर कूल, देन यू आर फाइन, आपको वहां पे जाने दे दिया जाएगा. इसकी वजह से बहुत केसेस बढ़ गए. तो ये आई वुड अंडरस्टैंड कि ये जो स्टेटमेंट था ये काफी गलत था, कंसिडरिंग कि इंडिया काफी सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस का पार्ट है जो कहते हैं कि हम बायोलॉजिकल वेपन नहीं यूज करेंगे. बट वॉज इट सेडिशन? Was it good enough to incite people against the democratically elected government or the government established by law? Does it fall under the definition of sedition under section 124A of the Indian Penal Code? I want you guys to answer this in the comment box, and this is exactly what the controversy is all about, that everybody who is going against the government is being charged of sedition recklessly these days.
So this is all about the session from my side. If you like our sessions, please subscribe to our channel, press the bell icon so don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much, guys. It means a lot.